So, hi everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to another session of PMI analysis from the Hindu, where we are going to do the PMI analysis, that is the pre mains interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And this part, the PMI analysis, that is the pre mains interview analysis, is the most important part after reading any particular article. Because if you don't do that, then you won't be able to identify the potential, the importance of any particular article that you are reading from any newspaper, be it Hindu, be it Indian Express. All right. So that is the very important part. And for you, I'm doing it through these sessions. All right. So let's move ahead and let's talk about the very first article, which says India's food response as Vasudhaiv Kutumbakam. So India has a ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, जिसमें हम पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं. वी कंसीडर वर्ल्ड एज वन. ऑलराइट. तो इस आर्टिकल में बात की गई है ड्यूरिंग दी ऑन गोइंग ग्लोबल हंगर क्राइसिस. उस ग्लोबल हंगर क्राइसिस के टाइम में भी इंडिया ने कैसे अपने आप को राइज किया है एज अ इंडिया के पास जो फूड का जो भंडार है, ठीक है, जो फूड का जो हमारे पास भंडार है वो अभी भी सरप्लस में है ड्यूरिंग दिस ऑनगोइंग ग्लोबल हंगर क्राइसिस. ठीक है. एंड कैसे इंडिया पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा है विद द सरप्लस फूड व्हिच इंडिया इज प्रोड्यूसिंग. ऑलराइट. सो लेट्स talk about this article in detail. So first of all, this article, guys, talks about the issues of global hunger, why the global hunger is rising, and other certain facts or data related to it. Okay, so this article says that global hunger is on the rise, and it is not only driven by the COVID-19 pandemic, but also by the climate crisis, but also by the conflicts between the countries, by also by the poverty and the inequality. ठीक है. पोवर्टी कॉन्फ्लिक्ट का बेस्ट एग्जांपल है जो अफगानिस्तान में हुआ. अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तालिबान ने ओवरटेक किया वहां की गवर्नमेंट को. ऑलराइट. तो जिसकी वजह से वहां पे एक हंगर क्राइसिस आया. जो वहां के लोग हैं उनके पास बेसिक फूड आइटम्स की भी कमी है आज की डेट में. पोवर्टी तो हमेशा से इशू रहा है इन द लो इनकम कंट्रीज, एंड इसके अलावा ड्यू टू राइजिंग इनइक्वालिटी, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी है थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो और वैसे भी बढ़ रही है. और तो ये जो राइजिंग इनइक्वालिटी है दैट आल्सो लीड्स टू द ग्लोबल हंगर क्राइसिस. So there is not only the one reason, that is COVID-19 pandemic, for this global hunger crisis, but there are various other reasons as well. And climate crisis इसका काफी बड़ा रीजन है ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितना ऑप्टिमम टेम्परेचर क्रॉप्स को चाहिए होता है उससे ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्रॉप्स अफेक्ट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो क्लाइमेट क्राइसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द ग्लोबल हंगर क्राइसिस. ऑलराइट. तो अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ग्लोबल हंगर क्राइसिस से रिलेटेड आता है, सो यू कांट राइट ओनली द वन रीजन, दैट इज द कोविड-19 पैंडेमिक. यू हैव टू साइट अदर रीजंस एज वेल, एंड दीज आर द अदर रीजंस. ऑलराइट. This article says that more people are living in hunger currently than in the year 2015, when the world adopted this when the world agreed to achieve the sustainable development goals. जो sustainable development goal है कि हमें जीरो हंगर अचीव करना है बाय द ईयर 2030, उससे ज्यादा 2015 में अडॉप्ट हुआ था, उससे ज्यादा हंगर क्राइसिस आज है हमारे दुनिया में. ऑलराइट. Then in 2019, 650 million people around the world suffered from chronic hunger, 43 million more than 2014, जो कि 2014 से कितना ज्यादा है, 43 million, which means in these 5 or 6 years 43 million people were added into the circle, into the umbrella of the chronic hunger, into the people who are suffering from the chronic hunger. Alright. Since the onset of the pandemic, अब उसके बाद ऑफ कोर्स देखो बाकी रीजन तो है ही, फिर 2019 में पैंडेमिक आ गया, उसने और ज्यादा ग्लोबल हंगर क्राइसिस को बढ़ावा दिया. सो द नंबर ऑफ पीपल ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन हैज डबल्ड फ्रॉम 135 मिलियन पीपल to 270 million people. So you can see this number, 270 million people across the world are on the brink of the hunger. ठीक है, are on the brink of chronic hunger. All right. And the global burden of malnutrition also remains enormous, and especially in the low income countries like Africa की कुछ countries में या फिर other Asian countries में भी. ठीक है. With almost 150 million children who are stunted and nearly 50 million children who are wasted. So this is a very, this is a huge cause of concern for all the governments across the world कि
आज के ज़माने में जब हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, स्पेस पे जाने की बात कर रहे हैं, मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, इन दिस टेक्नोलॉजिकल एरा हम बेसिक रिक्वायरमेंट जो है यानी कि हंगर, उस पर भी ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फोकस ऑन दीज बेसिक बेसिक थिंग्स, जैसे कि फूड हो गया, हाउसिंग हो गया, शेल्टर हो गया, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना की भी ज़रूरत है। आई एग्री कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी फोकस करना चाहिए, बट ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम हमें इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज भूखे पेट से कभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो सकती, याद रखना। अगर पेट में खाना नहीं जाएगा ना तो दिमाग नहीं चलेगा, और दिमाग नहीं चलेगा तो कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काम नहीं आएगी और ना ही आगे बढ़ पाएगी। ओके, तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया? ठीक है, अब इंडिया में 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक भाषण दिया था और उसमें बताया था उन्होंने that India's traditional outlook sees the world as one family and that is linked to Vedic tradition of Vasudhaiv Kutumbakam. हम पूरी दुनिया को एक मानते हैं and that is why we are providing all the support to the countries who are in the need of support. ठीक है, and especially in this food crisis. India has its relevance not just for global peace, cooperation, environment protection, but also for humanitarian response like food supplies. ठीक है, food supplies में भी इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। And this statement was given by our Prime Minister Narendra Modi in the 2014 United Nations General Assembly meeting. So, what are some of the India's achievement? इंडिया की क्या क्या अचीवमेंट है इन दिस फूड सिक्योरिटी एरिया, उसकी बात करते हैं। नंबर 1 इसमें एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मेंशन है अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान में भी फूड क्राइसिस चल रहा है, उसमें भी इंडिया ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। इंडिया इज प्रोवाइडिंग फूड असिस्टेंस टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान with the help of United Nations Food Program. All right. Then India has also provided aid to various countries in Africa and in the Middle East or West Asia to overcome the natural calamities and the COVID-19 pandemic, so they can fight with this food crisis in the respective countries. Other than this, in 2020, that is the year of pandemic, India produced 300 million tons of cereals. ठीक है, और हमारे पास 100 मिलियन टन का सरप्लस था and had built up a food stock of 100 million tons. All right. And other than this, as India's food grain surplus continues to grow, India has upgraded its position from receiving food aid to giving the food aid to all the nations which are in the need of food assistance. ठीक है, क्योंकि इंडिया का सरप्लस बड़ा है तो इंडिया की जो पोजीशन है वो अपग्रेड हुई है। कहां से? पहले इंडिया फूड रिसीव करता था, जो फूड एड था वो रिसीव करता था, but now India is giving the food aid to the countries which are in need. All right, moving ahead, one of India's greatest contribution to equity in food is its National Food Security Act of 2013, which secures food for all. हमारे देश में जो भी ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास एक्सेस नहीं है फूड का, बेसिक फूड का, ठीक है, सीरियल्स का, पल्सेस का, शुगर का, इन सारी चीजों का, all these things are provided through the National Food Security Act. And other than this, there are various schemes which are going on under the government of India, which are there for ensuring the food security for all in the nation. Like for example, we have targeted public distribution system, we have ICDS, Integrated Child Development Scheme, we have midday meal scheme, and the recently launched during the COVID pandemic, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, all right, which has been recently extended up to September 2022. And in this, the government is providing free food to around 80 crore people across the country. ठीक है ना, जो कि बहुत बड़ा नंबर है. All right. And for over 5 decades, the World Food Program has been partnering with India and seen its transition from being a recipient to a donor. Now India, in the case of food, is not a recipient. India is a donor now because India is producing the surplus amount of food. All right. And we must take, देखो अब यहाँ तक ठीक है, सारी बातें अच्छी हैं, बट अगेन ऑल द प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व. ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में पहली स्लाइड पे देखा कि अभी भी 270 मिलियन लोग हैं जो कि अभी भी ग्लोबल हंगर का शिकार है, हंगर क्राइसिस का शिकार है. ठीक है, इसके अलावा और भी नंबर्स हमने डिस्कस किए. तो इन सारी चीज़ों के बाद हमें चिल होकर नहीं बैठना है. वी हैव टू टेक नोट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया कैन डू मोर and is doing more on delivering the goal of zero hunger and equity globally. All right. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, आपको इस बात से खुश नहीं होना है कि ओके
हमने अपने लिए तो खाना बना लिया, अब बाकियों को भाड़ में जाने दो, ऐसा नहीं है, बिकॉज वी हैव द पॉलिसी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वी कंसीडर वर्ल्ड एज वन. So in this case we have to provide assistance so that we can reduce this global hunger crisis which is going on in the world. All right, so this is about this article, and now let's do the PMI analysis, which is very important part after reading any article. I hope guys this article is clear. इस article में इंडिया की position को बताया गया है in the world with respect to the food assistance which it is providing, or you can say with respect to the food security. All right, now talking about pre में बात करें तो pre में they can ask you a direct question from प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, and the statements can be like this. The scheme was launched in the year 2020, so this would be the correct statement. It has been recently extended up to let's say December 2022, so this would be the incorrect statement because it has been extended up to September 2022. ऑलराइट, so, और काफी बार, आई थिंक 6 बार गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है ताकि फूड सिक्योरिटी को छीना ना जाए, सबको फूड मिले, ठीक है, बिकॉज अभी भी हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है. यस वी आर इम्प्रूविंग, बट जितना हमारा प्री पैंडेमिक का लेवल था वहां तक पहुंचने में अभी भी टाइम लगेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग कंटिन्यूसली दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट मेंस, so we have a topic food security in GS3. All right, in that they can ask you a very good question. Examine India's role in ensuring the global food security in the current rising global hunger. तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है? पहला तो एक कीवर्ड इसमें ग्लोबल हंगर है, फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है इसमें इंडिया का रोल क्या है इन ensuring the global food security. So first of all you will give the idea to the examiner about the global hunger, कि ग्लोबल हंगर आखिर क्या है और क्यों ग्लोबल हंगर हमारे दुनिया में फैल रहा है. तो जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था एग्जैक्टली छाप देना अपने मेंस के एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है. और उसके बाद इंडियाज रोल इन इंश्योरिंग द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी. तो हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए अबाउट इंडियाज रोल एंड अबाउट इंडियाज अचीवमेंट्स, दोज पॉइंट्स यू कैन कॉपी, जस्ट कॉपी पेस्ट हियर इन योर मेंस एग्जाम. ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं होगी और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है. दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन. ठीक है, एंड इंटरव्यू में भी सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. What are some of the steps that government of India is taking in tackling the global hunger crisis? Global hunger crisis को tackle करने में government of India के क्या क्या steps हैं? All right. So this is the PMI analysis and this is the very important guys. देखो after reading any article एक आपने क्वेश्चन बना लिया कि यस इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, और कोई भी ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन मत बना लेना, जबरदस्ती PMI एनालिसिस नहीं करना है. अगर कोई नॉन रेलेवेंट इररेलेवेंट आर्टिकल है उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल व्हिच इज अबाउट श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था बट इस आर्टिकल में और थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द रीजंस ऑफ ऑनगोइंग श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस, और बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. सो लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस. व्हाट वर द रीजंस ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि श्रीलंका में चल रही है. और अब तो ये हालत हो गई है कि अभी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये हुआ है कि ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी को पोस्टपोन करना पड़ गया बिकॉज लाइट नहीं थी. यू कैन सी कितनी बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन में अभी श्रीलंका पहुंच चुका है. ठीक है ना. The Sri Lankan economy has been facing a crisis owing to a serious balance of payment problem. सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट. और दूसरा जो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो डिटेरियोरेट हो रहे हैं. ठीक है, दीज आर द टू मेन रीजंस फॉर दिस इकोनॉमिक क्राइसिस. पर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो क्राइसिस है ये कैसे हुआ, ठीक है, ये क्यों हुआ, इसकी बात भी करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स. देखो 21st सेंचुरी में आज की दुनिया में भी श्रीलंका's economic fortunes continue to be tied to the export of primary commodities such as tea, rubber and garment. उसका जो ज्यादातर एक्सपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है? टी से है, रबर से है और गारमेंट से है, जो कि प्राइमरी कमोडिटीज है. ठीक है ना. वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इतनी है ही नहीं कि दे कैन एक्सपोर्ट दी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स. ऑलराइट, देन इट मोबिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थ्रू दीज कमोडिटीज. ये जो कमोडिटीज वो एक्सपोर्ट करता है वो उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके आता है और फिर उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से वो इंपोर्ट करता है वेरियस एसेंशियल कमोडिटीज इंक्लूडिंग फूड. फूड को भी उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है.
तो यू कैन सी ये बहुत बड़ा रीजन है बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम का और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रॉब्लम का, क्योंकि वो सिर्फ प्राइमरी कमोडिटीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो प्राइमरी कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। इनफैक्ट होगा क्या कि अगर हम अगर श्रीलंका प्राइमरी कमोडिटीज को ज्यादा एक्सपोर्ट कर देगा तो उसके खुद के देश में क्राइसिस आ जाएगी इन कमोडिटीज की। ऑलराइट, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उसके पास उतनी है नहीं कि वो तैयार माल को एक्सपोर्ट कर सके। ऑलराइट, तो अब वो करता क्या है कि इन आइटम से, इन कमोडिटी से जो फॉरेन एक्सचेंज उसके पास आते हैं उसके बदले में फिर वो इंपोर्ट करता है क्या, एसेंशियल, अदर एसेंशियल कमोडिटीज, और जिसके अंदर फूड भी इंक्लूड है। तो अगर किसी देश को फूड भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना, तो वो उसके लिए बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। एटलीस्ट हर देश को फूड सफिशिएंट होना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा इन द एरिया ऑफ फूड सिक्योरिटी। ऑलराइट, मूविंग अहेड, When श्रीलंका emerged from a 26-year long war, देखो बहुत लंबी वॉर चली थी श्रीलंका में, 2009 में वो वॉर खत्म हुई, तो ऐसा माना गया कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है रिवाइव कर जाएगी, बिकॉज एट दैट टाइम श्रीलंका जीडीपी ग्रोथ वाज 8 to 9%, 8 to 9% की जीडीपी ग्रोथ थी 2009 में। पर क्या हुआ कि वो इतना नीचे आ गया, उसके पीछे बहुत सारे पॉलिसी फेलियर्स भी हैं, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अजीब अजीब सी पॉलिसीज को फॉलो किया, जिसकी वजह से ये जो इसकी जीडीपी ग्रोथ है या जो आज इतनी ज्यादा डेट के अंदर है श्रीलंका, उसके पीछे बहुत सारे पॉलिसी फेलियर्स भी हैं। श्रीलंका पोस्ट वॉर जीडीपी ग्रोथ वाज रीजनेबली हाई एट 8 to 9% पर एनम बिटवीन 2009 एंड 12, बट आफ्टर 2013 ये जो इनकी इकोनॉमी स्पाइरल डाउन हुई, वो बहुत बड़ा कंसर्न था। ठीक है ना, अब क्यों हुई, बिकॉज ऑफ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस फेल, एक्सपोर्ट स्लोड डाउन एंड इंपोर्ट रोज। देखो इसके इंपोर्ट बढ़ गए, एक्सपोर्ट कम हो गए। अब क्योंकि जो वो एक्सपोर्ट कर रहा था वहीं से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ रहे थे और उसी से वो इंपोर्ट कर रहा था। अब हुआ क्या, इंपोर्ट बढ़ गए, ठीक है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो निकल ज्यादा रहे हैं श्रीलंका से, और क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो गए तो फॉरेन एक्सचेंज आ कम रहा है, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो लेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसके अलावा जो कमोडिटी प्राइसेस, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिर गए, ठीक है, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी ने नीचे आना शुरू किया इन द ईयर 2030। तो शुरुआत कहां से हुई, 2013 से, बिकॉज 2012 तक उनकी जीडीपी एक एवरेज ग्रोथ रेट पे थी 8 से 9% की, जो कि एक डिसेंट ग्रोथ रेट माना जाता है फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। ऑलराइट, देन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, श्रीलंका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड उसके अलावा दिस 2008 फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ड्रेन्ड अ लॉट श्रीलंका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, बट उसको भी उन्होंने संभाल लिया था, बिकॉज 2012 तक 8 से 9% चल रहा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आईएमएफ से लोन लिया था $2.6 बिलियन का, $2.6 बिलियन का, और कंडीशन ये रखी गई थी इस लोन में कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है आप उसको 5% से नीचे लेके आओगे, 5% से लेके नीचे लेके आओगे, पर वो कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं हो पाई। तो $2.6 बिलियन का लोन आ गया। अब लोन से देखो ज्यादा देश नहीं चल सकते, लोन वापस भी तो करना पड़ता है ना। वापस करने के लिए इकोनॉमी को अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, इकोनॉमी को पैसा कमाना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कहीं से लोन ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उसको वापस भी तो करना है, और वापस करने के लिए मेरे को पैसे कमाने पड़ेंगे, और पैसे श्रीलंका कमा नहीं पा रहा है ड्यू टू वेरियस रीजन, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। फिर उसके बाद श्रीलंका की इकोनॉमी अगेन ड्यू टू वेरियस रीजंस, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, गिरती रही। 2016 में उसने फिर से आईएमएफ से लोन लिया $1.5 बिलियन का, $1.5 बिलियन का, और अगेन कंडीशन वही थी कि आप अपने जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करोगे 3 साल के अंदर, 2016 से लेके 19 के अंदर, बट फिर भी वो नहीं हो पाया। आईएमएफ की कंडीशन ये थी कि 3.5% हो जाना चाहिए आपका फिस्कल डेफिसिट बाय द ईयर 2020, वो भी नहीं हुआ। ये सब कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो उनकी इकोनॉमी थी वो और नीचे जाने लगी। फॉर एग्जांपल, जीडीपी ग्रोथ रेट श्रैंक फ्रॉम 5% इन 2015 to 2.9% in 2019. इन्वेस्टमेंट रेट फेल फ्रॉम दिस मच टू दिस मच इन 2019। सेविंग्स रेट गिर गए, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कम हो गए, एंड जो गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज थे उन पे भी और ज्यादा डेंट आया, और ज्यादा इंपैक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत ज्यादा कम होने लगे। ठीक है, तो सारे जो कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं हो पाई जो आईएमएफ ने लोन दिया था। अब 2019 में दो शॉक्स और लगे। पहला, ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अप्रैल 2019 में। अब देखो, किसी भी कंट्री में जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, तो क्या होता है कि जो बाहर के लोग हैं
वो आना कम कर देते हैं, यानी कि जो टूरिज्म है वो डिक्लाइन हो जाता है। एंड टूरिज्म कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द श्रीलंका इकोनॉमी। अब क्योंकि ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से लोगों ने आना कम कर दिया, टूरिज्म डिक्लाइन होना शुरू हो गया था प्री पैंडमिक, पैंडमिक से पहले ही। फिर पैंडमिक के बाद तो हमने डिस्कस किया था पहले भी, देखो पैंडमिक आने के बाद टूरिज्म खत्म, ठीक है, जो इसका मेजर एक्सपोर्ट वाला जो चीज़ें थी जैसे टी हो गया, रबर हो गया, गारमेंट्स हो गया, वो एक्सपोर्ट कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि टी की प्रोडक्शन कम हो गई, रबर की प्रोडक्शन कम हो गई, गारमेंट्स की प्रोडक्शन कम हो गई, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन हर जगह फैला हुआ था, तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रही थी। ऑलराइट, दिसंबर 2019 में इन्होंने अब अलग ही दिमाग लगाया कि चलो क्या करते हैं कि जो वैट जो टैक्स रजीम है उसमें जितने भी टैक्सेस हैं उनको हटा देते हैं। अगर आप टैक्सेस हटा दोगे तो आपकी इनकम जो है वो और कम हो जानी है। जैसे फॉर एग्जांपल वैट रेट्स वर रिड्यूस फ्रॉम 15% टू 8%। तो बिल्कुल ही मतलब इलॉजिकल सा डिसीजन था ये श्रीलंकन गवर्नमेंट का। एंड एनुअल थ्रेशोल्ड जो था वैट रजिस्ट्रेशन का वो भी बढ़ा दिया, ठीक है। हालांकि इनको ये लगा था कि इससे क्या होगा कि कंपनीज जो है वो मोटिवेट होंगी ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना, रिसोर्सेज देना आपका काम है, आपका काम ये बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, एंड जीएसटी और वैट रेवेन्यूज वर हाफ बिटवीन 2000 एंड 1920 ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दिस टैक्स। जो इन्होंने टैक्स रेजीम में चेंजेस किए थे उसकी वजह से जो जीएसटी और जो वैट का कलेक्शन था श्रीलंकन गवर्नमेंट का वो 2019 से 20 के बीच में आधा हो गया, वो होना ही था। इसके अलावा कोविड-19 पैंडेमिक इन 2020 मेड द बैड सिचुएशन वर्स। एक्सपोर्ट ऑफ टी, रबर, स्पाइसेस एंड गारमेंट्स सफर्ड, डिस्कस्ड। टूरिज्म अराइवल्स एंड रेवेन्यूज फेल फर्दर। अब ये फर्टिलाइजर, ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाला जो ये क्लॉज लेके आए थे ना, ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर था। अब देखो श्रीलंका की गवर्नमेंट को ये लगा कि हमारा बहुत सारा पैसा जा रहा है जी फर्टिलाइजर सब्सिडी में, हमारा बहुत सारा पैसा कहाँ जा रहा है? फर्टिलाइजर की सब्सिडी देने में जा रहा है। और मेजर पार्ट जो फर्टिलाइजर का था यहाँ पे वो हो रहा था इंपोर्ट। तो इस इंपोर्ट को रोकने के लिए, इस इंपोर्ट को बंद करने के लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अब पूरे की पूरी एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक कर देंगे। पर ये नहीं हो सकता, ओवरनाइट कोई भी चीज़ें बदल नहीं सकती। अगर आपको ऑर्गेनिक करना है तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप एकदम से नहीं कह सकते कि ठीक है भाई आज से फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बंद और कल से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खेती चालू, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बिल्कुल हम शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम दिस फर्टिलाइजर टूवर्ड्स ऑर्गेनिक मैन्योर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसके पीछे इनके जो श्रीलंका के जो साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि अगर आप ऐसा करोगे तो फूड प्रोडक्शन जो है और ज़्यादा कम हो जाएगा। और फूड आप ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हो, तो अगर फूड प्रोडक्शन और कम हो जाएगा तो इंपोर्ट का बर्डन और आएगा इकोनॉमी के ऊपर। ऑलराइट, और यही हुआ। इन February 2022 the IMF assessed that there was a worse than anticipated impact of the chemical fertilizer ban on agriculture production. Alright. इसके अलावा as agriculture production fell, more imports of food became necessary, but increasing import was difficult in the face of foreign exchange shortages, जिसकी वजह से inflation rise हो गया। और आज in the year month of February 2022 inflation rises, इन्फ्लेशन कितना है वहां पे? 17.5%। यू कैन सी कि कितने सारे पॉलिसी फेलियर है श्रीलंका गवर्नमेंट के। आई मीन वो क्या सोच के पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं उनके इंटेंशन खराब नहीं है, बट यस जो उनका जो उनके थिंक टैंक है वो उतने अच्छे से सोच नहीं पा रहा है कि हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या करना है। सिर्फ लोन से, सिर्फ एक्सटर्नल सपोर्ट से देश नहीं चलता है, खुद की पॉलिसीज भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी श्रीलंका को। ओनली देन Sri would be able to revive its falling economy. Alright, so this was the Sri Lanka's economic crisis. I hope this is clear. And now let's talk about the pre-mains and interview analysis. वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। Pre-main is not relevant because IR से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होता है। मेंस में हालांकि इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंटरनेशनल रिलेशन वी हैव अ टॉपिक इन GS2, तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। Sri economic crisis is due to misguided policies and flawed external advice. कमेंट, ठीक है ना। और इसके अलावा जो चाइना ने ओवरटेक करने की कोशिश करी है वो भी बहुत बड़ा रीजन है ग्लोबल इसके श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस का, ठीक है। तो इसमें आपको जो जो हमने अभी पढ़ा, जितनी भी सारी चीजें पढ़ी वो सारी की सारी आपको लिख देनी है एज इट इज, एंड यू विल गेट डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। And again, similar question in interview. What are the reasons of spiraling down of Sri Lanka's economy? क्या reason है
कि श्रीलंका की इकोनॉमी गिर रही है, तो जितने भी रीजंस हमने पढ़े अभी वो आप सारे के सारे उसमें मेंशन कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल व्हिच इज बेस्ड ऑन द असम मेघालय बाउंड्री डिस्प्यूट. तो असम मेघालय का बाउंड्री डिस्प्यूट है वो अब पार्शियली रिजॉल्व हो गया है या होने की तरफ बढ़ चुका है. तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है. तो इसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिस्प्यूट एंड इसको रिजॉल्व करने के पीछे दोनों स्टेट्स ने कितने एफर्ट किए हैं. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल. सो व्हाट इज द डिस्प्यूट? फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट. So as we all know, Meghalaya was carved out of Assam. ठीक है, मेघालय असम से निकला था through this act, which was मेघालय एक्ट. असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बोलते हैं या फिर मेघालय एक्ट भी बोलते हैं. लिखा है द क्रिएशन ऑफ द असम रीऑर्गेनाइजेशन और मेघालय एक्ट ऑफ 1969 एंड it was formed as a full-fledged it became a full-fledged state in the year 1972. अब देखो हुआ ये, जब ये इसको स्टेट का दर्जा मिला, ये जब इसको निकाला गया असम में से मेघालय को, तो हुआ ये कि जो मेघालय के कुछ ट्राइबल रीजन्स थे, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स. मेघालय के कुछ रीजन्स थे, कुछ रीजन्स ऐसे थे असम में जो कि मेघालय के जो खुद के ट्राइबल्स हैं उन्होंने क्लेम किया कि हमारे ट्राइबल्स जो है उनका रीजन है, ठीक है, पर वो जो एरिया था पूरा का पूरा वो कहाँ था? असम में ही था. तो यही डिस्प्यूट था बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स. ऑलराइट, so this was because the act followed the recommendation of a 1951 committee to define the boundary of Meghalaya, and according to the recommendation of this committee, the areas of present day East Jaintia Hills, Ri-Bhoi and West Khasi Hills districts of Meghalaya were transferred to the Karbi Anglong and Kamrup districts of Assam. कुछ रीजन्स ऐसे थे मेघालय के जो कि असम को ट्रांसफर कर दिए गए. इसको मेघालय ने बोला कि भाई देखो ये जो रीजन है ये तो हमारे हैं. मेघालय contested these transfers after statehood, claiming they belong to its tribal chieftains. ये उनके ट्राइबल लोगों का एरिया है तो आप प्लीज इसको असम में मत दो. बट असम ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, आपके पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि ये आपके ट्राइबल लोगों का एरिया है या रीजन है. Assam said the Meghalaya government could neither provide documents nor any archival materials to prove its claim over these areas. Alright, so this was the dispute. I hope this is clear. Let me tell you in more simple words. जब मेघालय को निकाला गया असम से, ठीक है, तो क्या हुआ? कुछ एरियाज ऐसे थे जैसे ईस्ट जयंतिया हिल्स वगैरह वगैरह, उनको ट्रांसफर कर दिया गया. कहाँ पे? कामरूप डिस्ट्रिक्ट और कार्बी एंगलोंग एरिया ऑफ द असम. मेघालय ने ऑब्जेक्ट किया कि देखो ये जो रीजन्स है ये हमारे ट्राइबल लोगों के रीजन्स हैं, तो प्लीज डोंट ट्रांसफर दीज रीजन्स टू दी असम. ऑलराइट, असम ने बोला कि नहीं, आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो रीजन्स है या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कि ये जो रीजन है ये आपके ट्राइबल लोगों से बिलोंग करता है. ऑलराइट, दिस वाज द डिस्प्यूट. नाउ रिजॉल्व करने की बहुत सारे कोशिश हुए हैं. नंबर 1, जो नेगोशिएशन सबसे पहले शुरू हुई थी दैट वाज इन द ईयर 1983 व्हेन the states, the Meghalaya and Assam formed a joint official committee to address the issue. एक उन्होंने joint official committee बनाई issue को address करने के लिए, but कुछ नहीं हुआ. After that, the two states agreed to the constitution of an independent panel in the year 1985, and it was headed by Justice Y.V. Chandrachud. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1987 में. फिर मेघालय ने अगेन उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन है ये प्रो असम है. तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ. उसके बाद both the governments agreed in the month of January 1991 to jointly demarcate the border with the help of Survey of India. ठीक है, अब उन्होंने ये एग्री किया कि ठीक है सर्वे ऑफ इंडिया से डिमार्केशन करा लेते हैं, जिसके हिस्से में जो जाएगा वो बात ठीक हो जाएगी. लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ. About 100 kilometer of the border was demarcated, but Meghalaya found the exercise unconstitutional और उसने रिफ्यूज कर दिया कि हम कोऑपरेट अब नहीं कर सकते क्योंकि मेघालय का वहां पे लॉस हो रहा. ठीक है, फिर 2011 में मेघालय असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें अब इंटरफेयर करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको इस इशू को रिजॉल्व करने में हेल्प करनी चाहिए दोनों स्टेट्स की. लेकिन असम असेंबली ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है. ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा है, दोनों गवर्नमेंट से बोला कि आप नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करो जो कि इस इशू को एग्जामिन करेंगे और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ. फाइनली इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 होम मिनिस्टर अमित शाह ने दोनों स्टेट्स को बोला कि भाई देखो इस इशू को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है
और ये इस बार इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दोनों ही स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और क्योंकि सेम गवर्नमेंट है तो हाई कमांड ने कुछ ऑर्डर दिया है तो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, अब चाहे आप सेटिस्फाइड हो या सेटिस्फाइड नहीं हो। ऑलराइट, in the month of June 2021, the two states decided to resume talks at the CM level and adopt a give and take policy to settle the disputes once and for all। ठीक है, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ 12 डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, इनको रिजॉल्व करना है। तो जून 2021 की जो बातचीत थी उसमें डिसाइड हुआ कि अभी हम 6 पे काम करेंगे, बाकी 6 पे बाद में काम करेंगे। ठीक है, both states formed 3 regional committees, one each for a district affected by the disputed sector, and on January 29 the two governments signed a draft resolution prepared on the basis of the recommendation of these panels। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व हुआ है, और आज अभी 2-3 दिन पहले ही एक दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ है। कुछ एरिया अराउंड 36 किलोमीटर का एरिया है वो रिजॉल्व हो चुका है। 18 स्क्वायर किलोमीटर असम के पास गया, 18 स्क्वायर किलोमीटर मेघालय के पास गया। ठीक है, अब आप खुश हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हाई कमांड का ऑर्डर है वो आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द पीएमआई एनालिसिस ऑफ दिस आर्टिकल। प्री के लिए इट इज नॉट रेलेवेंट but it is relevant for mains, GS2 Indian polity. They can directly ask you a question, what are the various ways to resolve the boundary disputes between the states। अगर किसी दो स्टेट के अंदर बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या तरीके हैं। देखो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका डायरेक्टली मेंशन नहीं है फॉर रिजॉल्विंग दिस इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट। आर्टिकल 263 है, इंटरस्टेट काउंसिल है, जोनल काउंसिल है, बट वहां पे कहीं पे भी डायरेक्टली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है जहां पे बाउंड्री डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की बात की गई हो। ठीक है, तो आप क्या क्या तरीके मेंशन कर सकते हो, जो असम और मेघालय ने फॉलो करे थे तरीके, आप वो बता सकते हो कि भाई ये तरीके फॉलो किए जा सकते हैं टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट। या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट से कहा जा सकता है कि सर आप इंटरवीन करिए इन दिस इशू और इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऑलराइट, so the question can be like this, what are the various ways through which an interstate boundary dispute can be resolved, discussed in the light of Assam Meghalaya border dispute। okay, and similar question इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि why there are so many border disputes in the north eastern region। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इतने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्यों हैं। एक रीजन मैं बताऊंगा और दो रीजन आपको बताने हैं, बिकॉज आई थिंक अगर आपको नहीं चमकेगा कोई रीजन तो फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। एक रीजन सबसे बड़ा जो है वहाँ का ज्योग्राफी है, पहाड़ है, जंगल है, ठीक है, और कहीं पे नदियां बह रही है, तो जिसकी वजह से बाउंड्री की डिमार्केशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक रीजन ये होगा। दूसरा रीजन वहाँ पे ट्राइबल्स को लेके बहुत बड़ा रीजन है, जैसे कि मेघालय और असम के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ। तो दो रीजन है, ये मैंने आपको बताया, दो आपको बताने हैं इन दी कमेंट सेक्शन। So this is how the question can be asked from this article. I hope this article is clear. Now let's move ahead to another article जो कि हमारे पड़ोसी देश के बारे में है। अब आप सबने देखो, इसमें से कोई क्वेश्चन तो यूपीएससी में नहीं आएगा, बट यू शुड नो अबाउट दिस बिकॉज पड़ोस में हलचल हुई है कुछ, तो पता होना चाहिए भाई। अब इनकी जो इनका जो इमरान खान है उनकी सरकार वहाँ पे गिरने वाली है। ठीक है, जो इनके खिलाफ वो रेजोल्यूशन मूव हुआ था, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव हुआ था उसमें ये डिफीट हो गए हैं। नाउ इनकी अब सरकार जाने वाली है, इनकी कुर्सी जाने वाली है और अगले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, बट यस पता होना चाहिए। और अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ। ठीक है, और इनकी अब कुर्सी चली गई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये हार गए। ठीक है, Now, this article is very important. This is the last article for today. And आज के पेपर में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे नहीं, और मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको किसी का भी हिंदू एनालिसिस देखना आप देख सकते हो, बट यू शुड नो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है देन बहुत चीज़ें आप लूज आउट कर जाओगे। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना, बिकॉज यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है टाइम की। अगर आप टाइम ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हो देन यू विल डेफिनेटली लूज आउट ऑन योर एग्जामिनेशन। ऑलराइट, now this article is about the space debris and ISRO is setting up tracking of space debris। इसरो क्या कर रहा है, जो इसरो का नेत्र प्रोजेक्ट है वो इसमें कुछ रडार सेटअप करेगा, कुछ कैमरा सेटअप करेगा जिससे कि वो स्पेस डेब्री को ट्रैक कर सके। ठीक है ना, तो यही मेंशन है इस आर्टिकल में। लेट्स टॉक अबाउट दिस। With space junk posing increasing threat to Indian assets in space, ISRO is building up its orbital debris
tracking capability. Now, how ISRO is doing that? It is doing by deploying new radars and optical telescopes under the Project Netra. Project Netra के अंदर वो कुछ टेलीस्कोप लगा रहा है, कुछ रडार लगा रहा है, जिससे कि स्पेस डेब्री जो कि इंडियन एसेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको ट्रैक किया जा सके, और ट्रैक करने के बाद उसको बाय अदर मींस उसके जो ट्रेजेक्ट्री है उसको चेंज किया जा सके, ताकि वो हमारे एसेट्स, हमारी सैटेलाइट्स, हमारे स्पेस एसेट्स से आगे ना टकराए और उसको नुकसान ना दे। ठीक है, बट इतना ही काफी नहीं है, स्पेस डेब्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी होता है। स्पेस डेब्री क्या होता है बेसिकली? देखो आप इसमें इमेज देख सकते हो, 1957 में स्पेस का चेहरा कुछ ऐसा था, 2030 तक जाके कुछ ऐसा हो जाएगा जहाँ पे ये सारा का सारा स्पेस डेब्री जमा है। स्पेस डेब्री क्या होता है? जो भी हमारे स्पेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गए जितने भी हमारे, या उसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कोई रॉकेट गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो है जब इनकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है या जब इनके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये स्पेस में ही अर्थ के ग्रेविटेशनल रीजन में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, अब वो किसी काम के तो है नहीं, लेकिन वो वहां पे घूम रहे हैं तब भी, तो इसी चीज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेस डेब्री। और क्यों ये कॉज ऑफ कंसर्न है? क्योंकि ये सही चलने वाली सैटेलाइट या सही चलने वाले स्पेस स्टेशन या फिर अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं उससे टकरा के। ठीक है, इसमें एक टर्म है केस्लर सिंड्रोम, ये आपको पता होना चाहिए। केस्लर सिंड्रोम का मतलब होता है कि ये एक फिनोमिनन है बेसिकली, तो ये कहता है कि स्पेस डेब्री एक पॉइंट के बाद इतना ज्यादा हो जाएगा कि उससे बाहर निकलना इज नॉट पॉसिबल। मतलब a space debris will only create more space debris in the future, और ये चलता चला जाएगा, बिल्कुल इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो हम बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम। इट इज अ फिनोमिनन ऑफ फॉर्मिंग ऑफ मोर एंड मोर स्पेस डेब्री फ्रॉम अ सिंगल स्पेस डेब्री। ठीक है, ये होता है केस्लर सिंड्रोम, ये आपको पता होना चाहिए। And what are the steps the world is taking to control the space debris? Number one is the Interagency Space Debris Coordination Committee, which is an intergovernmental forum for coordination of activities related to the issues of this space debris. All right. Then we have Clear Space One mission. Okay, this mission is of European Space Agency. Okay, and it will be launched in the year 2025 with the same objective of tackling the issue of space debris. Then we have Neo 01, which is a robot prototype which was launched by China to tackle this issue. And then we have ISRO's Project Netra, which is an early warning system, जो कि warning दे देता है पहले ही अगर कोई space debris आने वाला है towards any space asset. ठीक है, so these are some of the steps which the world is taking to control this issue, this problem of space debris. So I hope this article is clear, and this is very important for pre as well as mains. So consider the following statements with respect to space debris, and you would have to identify the correct statement. और इसमें केस्लर सिंड्रोम से भी एक रिलेटेड स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है ना। एंड मेंस में इट हैज द पोटेंशियल इन GS2 साइंस एंड टेक, GS3.2 GS3 साइंस एंड टेक में इसका काफी ज्यादा पोटेंशियल है। एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: the rising number of space debris increases the potential danger of all the space vehicles or all the space assets. What are the steps taken globally to control the menace of this space debris? क्या क्या steps लिए गए हैं? तो पहले हम इसमें बताएंगे कि space debris क्या होता है, space debris rise हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, and then finally we'll move ahead towards the solutions, कि क्या क्या solutions है या क्या क्या steps गवर्नमेंट ने लिए हैं या पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने लिए हैं to control this issue. राइट, इंटरव्यू के लिए इट इज डायरेक्टली नॉट रेलेवेंट, बट यस अगर कोई एग्जाम, कोई पैनलिस्ट उसके अंदर घुस गया तो दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन ऑन स्पेस डे। ठीक है, so this is the PMI analysis. I hope this is clear, and that's it for today's session. And if you want to have an all-round preparation, then you can download the Anuj Jindal app from the Google Play Store. Here you can get the daily live sessions, daily GK and quizzes, topper strategies, past year's papers, etc., etc. So this is a one-stop solution for all your exam-related issues. All right. Thank you so much for watching. I'll see you in the next session tomorrow. Goodbye. Take care, and God bless.